اطالوی کونسل خانہ کراچی کے زیر اہتمام اٹلی کے قومی دن پر پروقار تقریب۔ اطالوی کونسل جنرل نے مہمانوں کو خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ اور ڈی جی موفا کی خصوصی شرکت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سید زبیر راشد سے جانتے ہیں۔ زبیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اطالوی کونسلیٹ کی زیر اہتمام اطالوی قومی دن کی پروقار شایانہ شام تقریب کا انعقاد جو ہے وہ نجی ہوٹل میں کیا گیا، جس میں گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ڈائریکٹر جنرل وزارت خارجہ کراچی لیزن آفس محمد عرفان سومرو نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچو اور چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ، صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ سمیت مختلف ممالک کے جو کونسل جنرلز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، جبکہ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ ڈی جی موفا نے اٹلی کے قومی دن کے موقع پہ اطالوی حکومت، کونسلیٹ اور عوام کو دینی مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان باہمی احترام، درینہ دوستی اور موثر تعاون پر مبنی ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی نے غزہ کے مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کی، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ گورنر سندھ نے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جبکہ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ صوبہ سندھ اطالوی سرمایہ کاروں، کاروباری برادری کے لیے وسیع اور سازگار مواقع فراہم کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط کے فروغ کو تعلقات کے استحکام کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ گورنر سندھ نے پاکستان اور اٹلی کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مشترکہ تعاون کے فروغ پر عزم کا اعادہ کیا، جبکہ تقریب میں سفارتی شخصیات، کاروباری رہنما اور دیگر جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اطالوی کونسل جنرل مسٹر فیبریزو بیلی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اٹلی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت درینہ ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ تعاون اور شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اطالوی قومی دن آزادی، اتحاد اور جمہوری اقدار کی علامت ہے۔ فیبریزو بیلی کا کہنا تھا کہ اٹلی کی جدید تاریخ عوام کی جمہوری جدوجہد اور قومی یکجہتی کی عکاس ہے۔ اطالوی قوم نے ترقی، اختراع اور ثقافتی ورثے کے ذریعے دنیا میں منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی کے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد اور دوستی پر قائم ہے، جبکہ فیبریزو بیلی نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری، تعاون، عوامی روابط کے فروغ کو دو طرفہ تعلقات میں مزید مضبوط جو ہے کرنے کے حوالے سے انہوں نے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ جی زبیر راشد اپڈیٹ کر رہے تھے۔ زبیر، آپ کا شکریہ۔ شہر قائد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے فینسی اور جعلی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر ناکے لگا کر چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ بغیر نمبر پلیٹ یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں لی۔ شہر قائد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جعلی، فینسی اور بغیر نمبر پلیٹس گاڑیوں و موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شہر کے مختلف علاقوں میں خصوصی ناکے لگا کر چیکنگ کی جا رہی ہے، جہاں ٹریفک پولیس کے ساتھ سی پی ایل سی، ڈرائیونگ لائسنس ونگ، ایکسائز اور ضلعی پولیس کے افسران بھی موجود ہیں۔ صدر کلفٹن، گلستان جوہر، ناظم آباد اور دیگر اہم شاہراہوں پر قائم ناکوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک سعید کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ، جعلی نمبر پلیٹ یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کو تحویل میں لیا جا رہا ہے، جبکہ موقع پر جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ ناکے لگتے ہیں ہمارے آج، جیسے کہ یہاں پر بھی ہے اور دواخانہ صدر میں بھی اور سائڈ ایریا میں بھی ہے، تو اس حساب سے ہم جو نمبر پلیٹیں ہیں جو گورنمنٹ نمونے کے مطابق نہیں لگیں، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ دو گاڑیاں روکی بھی ہیں، جس میں ایک پہ تو ہے ہی نہیں اور ایک پہ ٹیمپرنگ ہے، یہ تقریباً چلی جاتی ہے، ہم 550 میں تھانے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جو گاڑیاں پہ چھوٹی نمبر پلیٹ ہے، آگے پیچھے لگی ہوئی ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن اس کا ہم چلان کر دیتے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مہم کا مقصد جرائم کی روک تھام اور گاڑیوں کی درست شناخت کو یقینی بنانا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سرکاری طور پر منظور شدہ نمبر پلیٹس نصب کریں اور ضروری دستاویزات ہمراہ رکھیں تاکہ چلان اور قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ ناظرین، امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل۔ یوم آزادی کی پروقار تقریب سجائی گئی، جس میں کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل چارلس گڈمین اور لاہور میں تعینات کونسل جنرل نے شرکت کی۔ امریکی کونسل خانہ کراچی کی جانب سے پروقار تقریب کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یوم آزادی کی پروقار تقریب سجائی گئی ہے،
जिसमें कराची में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन और लाहौर में तैनात काउंसल जनरल ने शिरकत की है। अमरीकी काउंसल खाना कराची की जानिब से पुरवकार तकरीब की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें अमेरिका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल तकरीब सजाई गई। अमरीकी कौंसल खाना कराची की जानिब से तफसीलात जो है वो जारी की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में स्वीडन की सफ़ीर अलेक्जेंड्रा समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने शिरकत की। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन और लाहौर में तैनात कौंसल जनरल ने भी शिरकत की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर का अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। नटली बेकर ने खिताब में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़ियादत ने पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक पहुँचाया है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान आला सतही रवाबित दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का सबूत है। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात का इनेकाद पाकिस्तान का अहम सिफारती किरदार है। नटली बेकर का ये कहना है। जबकि अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि पाकिस्तान ने मुखालिफ ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मुनफरिद किरदार जो है वो अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुनरमंदी और महारत आलमी सतह पर नुमाया हो रही है। नटली बेकर ने यह भी कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल पाकिस्तान में तैयार की जा रही है। उनका कहना था कि लाहौर में जो बसंत फेस्टिवल मनाया गया उसमें शिरकत करना उनके लिए बाइज़ शर्फ था। उन्होंने लाहौर के कल्चर को देखा और वो उसमें उन्होंने खुशी का भी इससे मुतल्लिक इजहार किया। जबकि उनका कहना था कि अमरीकी सफारत खाने में लिबर्टी बेल की 16 नकूल की खुसूसी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया था। पाकिस्तानी फनकारों और तलबा ने आज़ादी और जमहूरियत के तस्वुरात को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का बेहतरीन दौर अभी आना बाकी है। नटली बेकर का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का सबसे अहम बाब अभी शुरू हुआ है। तकरीब में दो तरफा ताल्लुकात, अमन, खुशहाली, मुश्तरका उमंगों को उजागर किया गया। जबकि नटली बेकर का पाकिस्तान के अवाम, सकाफत और मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्तगी का इजहार उन्होंने किया। ये तकरीब खूबसूरत तकरीब जो है सफारत खाने की जानिब से सजाई गई। आर्ट्स काउंसिल में स्टेज अदाकारा शानजे की सालगिरह की तकरीब, जिसमें स्टेज फनकारों ने शिरकत की। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने अदाकारा के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा। जिस वक्त हमारे साथ कराची स्टेज की मारूफ अदाकारा वर्दा शानजे मौजूद है। वर्दा शानजे की आज सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें तमाम फ़नकार मौजूद थे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह भी मौजूद थे। सबसे पहले तो शानजे, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहें? थैंक यू सो मच राहिल, बहुत शुक्रिया बर्थडे विश करने के लिए। और यहाँ बर्थडे मनाई गई, एक्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक जो करता है अच्छा करता है। बिल्कुल, तमाम फ़नकार एक साथ थे, सदर आर्ट्स काउंसिल भी थे, और फ़नकारों का एक साथ होना एक दूसरे आर्टिस्ट के लिए कितना वैल्यूएबल होता है और किस खुशी का इजहार है। बिल्कुल वैल्यूएबल तो इसलिए होता है कि और जब सब आर्टिस्ट हों, और सबसे बड़ी बात कि बाबा अहमद शाह ख़ुद से उन्होंने केक कटवाया, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी और बाप की कमी महसूस नहीं हुई। तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं ज़िंदगी की कितनी बहारें देखी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 80 से अभी तक देख ही रही हूँ। चलें जी, बिल्कुल। और बहुत कम आर्टिस्ट होती जो अपनी सही मैंने 4 दहाइयाँ देख ली हैं। 4 दहाइयाँ देख चुकी हैं, और इसी तरह से आप 100 दहाइयाँ देखें, सदियों जिए। और आज उनकी सालगिरह थी, जिसमें तमाम फ़नकार शामिल थे। फ़नकारों की इसी तरह से हौसला अफजाई से यकीनी तौर पर उनकी जो फ़नी सलाहियतें हैं वो और भी निखर कर सामने आती हैं। जी। बेलाल कॉलोनी के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाके में पानी की मुसलसल किल्लत ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज करती है। मकीनों का कहना है कि कई दिन पानी की सप्लाई नहीं आती, जबकि निजी टैंकर्स की कीमतें भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शदीद गर्मी में पानी न मिलने से ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग सभी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए अक्सा शेख की ये रिपोर्ट। कराची में पानी की किल्लत का मसला संगीन। शदीद गर्मी में पानी की अदम फराहमी ने बिलाल कॉलोनी के मकीनों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मकीनों के मुताबिक मजबूरी में निजी टैंकर्स खरीदना पड़ता है, मगर महंगे दामों पानी खरीदना अब हमारी कुव्वते खरीद से भी बाहर होता जा रहा है। खवातीन और बच्चे पानी के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि पानी कई दिन बाद आता है, हम बहुत परेशान हैं। गर्मी में हालात और खराब हो जाते हैं। कभी 51 सी जाना पड़ता है, कभी इलियास गोड जाना पड़ता है। यहाँ तो आते ही नहीं है। तो बोरिंग का ले लेते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, पानी पीने के लिए कहीं लेकर जाते हैं, या फिर फिल्टर वाला पानी लेकर लेते हैं हम लोग।
वैसे मिलते ही नहीं यार, पानी तो आ ही नहीं, कई साल हो गए। शदीद गर्मी, पानी की किल्लत और महंगे टैंकर्स, शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं और अब इंतजामिया से फौरी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाड़ी 5.5 नंबर और गोश्त मार्केट के करीबी इलाकों के मकीन बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। शहरियों का कहना है कि घरों में पानी की फराहमी ना होने के बराबर है, जबकि महंगे टैंकरों ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुतासरा मकीनों ने टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई और पानी की मुस्तकिल फराहमी का मुतालबा कर दिया है। दुआशकिल प्राचा की रिपोर्ट। कराची में पानी बहरान मजीद संगीन हो गया। लांडी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया शहरियों पर भारी पड़ने लगे। लांडी 5.5 नंबर और गोश्त मार्केट के करीबी इलाकों के मकीन पानी की शदीद बहरान का शिकार हैं। घरों में पानी की फराहमी न होने के बराबर है। रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए महंगे दामों टैंकर खरीदना मजबूरी बन चुका है। लांडी 5.5 नंबर की रिहायशियों के मुताबिक 15 बर्ड से सूरत हाल जू की तू है। इनका कहना है कि इलाके में टैंकर माफिया सरगर्म है और एक टैंकर 6 से 7 हजार रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है, जो आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। 13-14 साल होगा इस मसले का हल ही नहीं निकल रहा है और टैंकर माफिया यहाँ पे बैठा हुआ फीचर मोड़ के ऊपर। दुनिया को टैंकर मिले हैं, सामने देखें इनके टैंकर आते हैं, दिन में 4-5 टैंकर आते हैं। इन लोगों को सबको पानी मिल रहा है, आवाम को किसी को पानी नहीं मिल रहा है। सब पुरसाने हाल हुए हुए पानी के लिए, लोग खरीद के पी रहे हैं। बोरिंग में ज़मीन का पानी गायब हो गया। क्या करें अभी हम लोग खुद परेशान हैं। दूसरी जानिब गोश्त मार्केट के मकीन भी पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना हो सके, जबकि खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। खरीद के पीते हैं यहाँ पर पानी, हमने टैंकर आते हैं यहाँ पर खरीद के लेना पड़ता है पानी। अब मजदूर इंसान है, इतनी कमाई नहीं जितना पानी वालों को देना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि टैंकर माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। मुतासिर इलाकों में पानी की मुस्तकिल फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इन्हें इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कोरंगी अलावाला टाउन सेक्टर 31B में गैस की गैर एलानिया बंदिश और कम प्रेशर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इलाका मकीनों का कहना है कि सुबह और शाम के औकात में गैस ना होने के बराबर होती है, जिसके बायस खाना पकाने समेत रोजमर्रा के मामूलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जानते हैं दुआशकिल प्राचा की इस रिपोर्ट में। अल्लाहवाला टाउन सेक्टर 31B में कम गैस प्रेशर और बंदिश मामूल। गैस की गैर एलानिया बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। सुबह और शाम के औकात में चूल्हे जलाना भी मुश्किल हो गया। शहरी बुनियादी सहूलत की बहाली के मुंतज़िर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस के कम प्रेशर के बायस इन्हें LPG सिलेंडर और दीगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, जिससे घरेलू बजट मजीद मुतासिर हो रहा है। खवातीन को खाना तैयार करने में दुश्वारी, जबकि बुजुर्गों और बीमार अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि ईद के दिनों में, छुट्टियों के दिनों में, हॉलीडेज में जो है गैस नहीं जाएगी, लेकिन आप देख लें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कंटिन्यू जो है ना वो गैस जा रही है। और जो गैस की जो टाइमिंग है गैस के आने की, उससे भी लेट आ रही है गैस। अब उसमें आप देख लें कि हमें कितनी परेशानी, मतलब यहाँ फैमिलियों को, बच्चों के साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, और ये मुस्तकिल मसला जो है ना कंटिन्यू, मतलब कि इसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही है, कंटिन्यू यही मसला हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है। शहरियों के मुताबिक गैस फराहमी का मसला काफी अरसे से जारी है। मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई मौसर पेश रफ्त सामने नहीं आई। बिल तो पूरे आते हैं, उससे ज्यादा आते हैं बेटा। अब हम मजदूर आदमी है, मेरी 72 साल की उम्र है, इसके बावजूद मिसाल की बात है कि हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की गैर एलानिया बंदिश और कम प्रेशर के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि इन्हें बुनियादी सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। मई 26 में तिजारती खसारे में 39% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक मई में बरामदात में इजाफे और दरामदी बिल में कमी की वजह से तिजारती खसारे में बड़ी कमी हुई है। मई 26 में तिजारती खसारा 2 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गया, जो अप्रैल 26 में 4 अरब 26 करोड़ डॉलर रहा था। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती इक़दामात, तिजारती खसारे में बड़ी कमी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक अप्रैल 2026 में 4 अरब 26 करोड़ डॉलर रहने वाला तिजारती खसारा मई में कम होकर 2 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गया। तिजारती खसारे में माहाना बुनियाद पर 39% की रिकॉर्ड कमी हुई। मुशीर खजाना ने बताया कि मई 2026 में बरामदात में माहाना बुनियाद पर 10% इजाफा हुआ और उनका हजम 2 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया, जबकि अप्रैल में बरामदात 2 अरब 46 करोड़ डॉलर थी। खुर्रम शहजाद के मुताबिक IT सेक्टर की बरामदात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की
तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा मुल्की मईशत के लिए हौसला अफजा इशारा है। जानिब मई 2026 में दरामदी बिल माहाना 22% की बड़ी कमी देखी गई। दरामदात का हजम अप्रैल के 6 अरब 73 करोड़ डॉलर के मुकाबले में कम होकर 5 अरब 28 करोड़ डॉलर रह गया। मुशीर खजाना का कहना है कि बरामदात में इजाफे और दरामदात में कमी के बाइस तिजारती खसारे में नुमाया कमी मुमकिन हुई। मजमूई तौर पर रवां माली साल के पहले 11 माह के दौरान तिजारती खसारे में 17.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई का मई माली साल 2025-26 के दौरान तिजारती खसारा 34 अरब 75 करोड़ डॉलर रहा, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत में ये 29 अरब 58 करोड़ डॉलर था। अदद शुमार के मुताबिक रवां माली साल के पहले 11 माह में बरामदात 5.6% कमी के बाद 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रही। माशी माहिरीन के मुताबिक मई में तिजारती खसारे में नुमाया कमी मुस्बत पेशरफ्त है। ताहम सालाना बुनियाद पर तिजारती तवाज़ुन को मजीद बेहतर बनाने के लिए बरामदात पर पायदार इजाफा ज़रूरी होगा। अशरफ खान, सिटी 21। सनत आर्ट गैलरी में मुसव्विरा शीमा खान के फनपारों की नुमाइश वॉर एंड रोज सज गई, जहां रवायती मिनिएचर आर्ट को जदीद अंदाज में पेश करते हुए माशरती रवैयों और इंसानी जज्बात की दिलकश अक्कासी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। जंग और फूल सनत आर्ट गैलरी में मुसव्विरा शीमा खान के फनपारों की नुमाइश सज गई। वार एंड रोज के उन्वान से सजी नुमाइश में फनपारों में रिवायती मिनिएचर आर्ट को जदीद असलूब के साथ हम आहंग किया गया। मुसव्विरा शीमा खान का कहना था कि हमने अपनी पेंटिंग्स में मिनिएचर आर्ट की रिवायत को बरकरार रखते हुए इसे जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक पेश करने की कोशिश की है। और मेरा काम जो है मिनिएचर ट्रेडिशन जो है बेसिकली मिनिएचर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उस पे बेस्ड करता हुआ है, जिस पे मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की है विद द रोजेस, बिकॉज रोजेस सिंबलाइजेज द ब्यूटी और ब्यूटी का और वायलेंस का एक साथ कनेक्शन है। और आई थिंक पेंटिंग एक बहुत खूबसूरत मीडियम है जिसमें आप दोनों चीज़ें एक बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखा सकते हैं। वार एंड रोज सिर्फ रंगों, एहसासात, ख्यालात के जरिए मुआशरती हकीकतों को बयान करने की एक तख्लीकी कोशिश की गई। कैमरामैन जहाजेब अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। नई पाकिस्तानी फिल्म ज़ोंबेड ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धूम मचा दी है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज करते हुए 21 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सिनेमा की नई हॉरर थ्रिलर फिल्म ज़ोंबेड ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री दे दी। फिल्म ने इब्तिदाई दिनों में ही 21 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस करके शायकीन और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को हैरान कर दिया। फिल्म को नौजवानों और फैमिलीज की जानिब से भरपूर रिस्पांस मिल रहा है। फहद मुस्तफ़ा की पावरफुल परफॉर्मेंस और महविश हयात की जानदार अदाकारी को नाजरीन की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। शानदार विजुअल इफेक्ट्स के इस्तेमाल ने फिल्म को मजीद हकीकत के करीब बना दिया है, जिसके बायस सिनेमा घरों में हाउसफुल के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। शायकीन का कहना है कि फिल्म की कहानी मुनफरिद, जानदार और एंटरटेनमेंट से भरपूर है, जिसने पाकिस्तानी सिनेमा में एक नया रुझान मुतारुफ कराया है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसी मूवी का और हमें बहुत मजा आया। ऐसी मूवीज पाकिस्तान में और बननी चाहिए। डेफिनेटली बिल्कुल बननी चाहिए भाई। अब थोड़ा सा जॉनर चेंज करना चाहिए, लव स्टोरी से निकल के थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए हमें। शायकीन ने महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा की अदाकारी को खूब सराहा और फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को भी शानदार करार दिया। बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी मूवी आई है, खासतौर पे महविश हयात और उसका फहद का काम बहुत अच्छा था। फिल्म बीनों का कहना है कि ज़ोंबेड की कहानी बहुत जानदार है और पाकिस्तानी सिनेमा को ऐसी मजीद फिल्मों की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।